Hey, hello friends. You are again welcome in my channel Maths by राजेश्वर चौहान. Friends, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था about the area of the triangle by the help of determinant. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about the minors, cofactors, adjoint and inverse of the matrix. दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट टॉपिक इज माइनर्स. Minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column and is denoted by mij. For example, let us suppose if you are given any determinant that is equal to 2, 3, 4, 5. एक चीज का हमेशा याद रखिएगा कि जो डिटर्मिनेंट है वो आपका ऑर्डर 2 और मोर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होना चाहिए. उसी का हम माइनर या फिर आगे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इट मींस लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m11. m11 मींस mij. तो m11, m12, m21 और m22 ये आपको चार माइनर्स इसके निकालने हैं. तो m11 मीन्स हम इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं a11 का. तो डिलीटिंग द करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम देन दिस इज इक्वल टू 5. ये डिटर्मिनेंट हमारा ऑर्डर 2 का है और ये हमारा जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो आपका ऑर्डर 1 का बचेगा. तो m11 इक्वल टू 5. अब m12 निकालना है, दिस कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 4. m21 निकालना है तो ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3. और m22 का निकालना है तो दिस कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2. सो you know it very well that how can we find out the value of the determinant of order 1, that is equal to 5. this is 4, this is 3, this is 2. जरूरी नहीं है कि आप इसको डिटर्मिनेंट के तौर पे ही लिखो, आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी 5, 4, 3, 2 लिख सकते हो. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द minors. Is it clear? Okay. Next topic is cofactors. What is the meaning of cofactors? Cofactor is denoted by aij, capital Aij. यानी हम अगर aij का cofactor निकाल रहे हैं तो that is equal to aij equal to -1 to the power I plus j into mij, where mij is denoted as the minor of the element aij. So this is the cofactor. So let us find out the cofactor of this determinant. Then a11 is equal to, a11 means -1 to the power 1 plus 1. It means I plus j 1 plus 1 into mij means m11, and m11 is that is m11, or m11 is what? That is equal to 5. So this is equal to -1 to the power 2 into 5, and the value of -1 to the power 2, it means -1 की power even number है तो that is equal to plus. So a12 equal to -1 की power 1 plus 2 into m12, and that is equal to m11. It means -1 की power 3, m12 is what? That is equal to 4. So this is equal to -1 to the power odd number, so it will be negative. So this is equal to -4. Similarly, a13 equal to -1 की power 21, because the determinant is of order 2 by 2. So 21 minus 2 plus 1 into m21. This is equal to -1 to the power 3, and m21 is what? That is equal to 3. So this is equal to -1, again power negative,
minus 1 to the power odd number, so this is again negative. So that is a22 is equal to minus 1 to the power 2 plus 2, that is equal to m22 is equal to minus 1 की power 4 into m22 is what? This is equal to 2. So this is equal to minus 1 to the power again even number, so that is equal to plus 2. So these are the cofactors of this determinant corresponding to the minors m11, m12, m21, m22. So first of all you have to find out the minors and then cofactors, and you can find the cofactors directly as a11 equal to minus 1 की power 1, minus 1 की power 1 plus 1 into deleting this row and this column also, so that is equal to 5. So these are the minors and cofactors. Let us take another example of order 3 by 3. You have to find out the minors of this determinant of order 3 by 3. So element of a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. So we have to find out the minors of a11 यानी m11, m12, m13. Similarly these one. Okay, so first of all we have to find out the value of m11. It means 2 का minor हमें find out करना है, तो corresponding this row can delete this row and this column, so that is equal to 0, 2, 1, 5. Similarly this one, this cancel 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5. So this is 1, 0, 3, 1, 1, 0, 3, 1, 2, 1. इसका माइनर अगर निकालना है तो कैंसिल दिस वन 3, 4, 1, 5, 3, 4, 1, 5. a22 का निकालना है तो 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5. और अगर इसका निकालना है तो दिस कैंसिल 2, 3, 3, 1. 3, 1 निकालना है तो दिस कैंसिल 3, 4, 0, 2. a32 का निकालना है तो 2, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 2. और इसका निकालना है तो 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0. Okay, now this is the determinant of order 3 by 3. So deleting the corresponding row and corresponding column, we get the determinant of order 2 by 2. So how can you solve the determinant of order 2 by 2? You know it very well. That is 0 into 5, 0 minus 2. So this is equal to minus 2. 5 minus 6, this is minus 1, 1 minus 0, this is equal to 1, 5 3 is 15 minus 4, this is 11, 5 2 is 10 minus 12, this is minus 2, and this is equal to 2 minus 9, this is equal to minus 7, 8 m31, that is equal to 3 2 is 6 minus 0, and this is 4 minus 4, and this is 0 minus 3, so this is equal to minus 3. So these are the minors of the determinant of order 3 by 3. Now we have to find out the cofactors. Cofactors formula is aij equal to minus 1 to the power I plus j into mij. It means if we have to find out the a11, that is minus 1 to the power 1 plus 1 minus 2, means a11 is minus 1 की power 1 plus 1 and m11 is what? That is equal to minus 2. So similarly you will get all the cofactors regarding this one. So you have to find out the cofactors directly without finding the m11 mij. How can you find out the cofactors directly? m11 इसमें अल्टरनेट साइन के हिसाब से चल जाइए. अगर हमें m11 की जगह a11 निकालना है, यानी कोफैक्टर्स डायरेक्ट निकालना है, तो इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट अल्टरनेट ऑर्डर में साइन चले जाइए, तो ये आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे कोफैक्टर्स माइनस प्लस, क्योंकि बिकॉज a11 1 plus 1 इवन नंबर जहां आ रही है इसकी वैल्यू सम वो प्लस आएगा, जहां इनकी जो वैल्यू है ऑड नंबर आ रही है वो नेगेटिव आएगा. सो वी कैन फाइंड आउट द
cofactors directly for determinant 3/3. Now value of the determinant using cofactors. How can you find out the value of the determinant by the help of cofactors? Let us suppose you are given the determinant of order 2/2 or 3/2 maybe. So let us take an example for order 2/2 first. So 2/2 is determinant is 1, 4, 2, 9. The value of the determinant is 9 1 is 9 minus 4 2 is 8, that is equal to 1. Now how can you find out the value of the determinant by the help of cofactors? So first of all we have to find out the minus and cofactors. पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे, या मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्ट आप कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हो. तो कोफैक्टर्स यानी a11 निकाला तो a11 मींस -1 to the power 1 plus 1 into element of this one by deleting the corresponding row and corresponding column. So this row cancel, this column cancel, so that is equal to 9. So -1 की power 2 into 9, that is equal to +9. Similarly a12 यानी a12 निकालोगे तो ये कैंसिल तो 2 आएगा, बट जब 2 आएगा तो 1 plus 2 ऑड नंबर आएगा, इट मींस नेगेटिव आएगा. Similarly 21 दिस कैंसिल तो 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 ऑड नंबर है तो माइनस का 4 आएगा. और a22 दिस कैंसिल दैट इज इक्वल टू 1. सो दीज आर द कोफैक्टर्स a11, a12, a21 and a22. Now how can you find out the value of the determinant? Let us suppose if you have to find out the value of the determinant, that is a11 into a11 plus a12 into a12. It means जब हमने 1 लिया यहाँ पे तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये लेते हैं 1 into 9 माइनस कितना 2, ये 4 into 2 ये लेते हैं, कुछ और लेते हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 into 9 प्लस 4 into -2. जरा ध्यान से देखिए कि 1 क्या है, a11 स्मॉल a11 दैट इज इक्वल टू a11 और 9 क्या है, दैट इज इक्वल टू a11, यानी 1 into 9 प्लस a12 क्या है, दैट इज इक्वल टू 4 into a12 कितना आया, दैट इज -2. सो दिस इज इक्वल टू 9 minus 8, दिस इज इक्वल टू 1. और वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट यहाँ भी कितनी आई थी, 1 आई थी. इट मींस if we have to find out the sum of the product of element with corresponding cofactor, let us suppose अगर हम मान लीजिए सेकंड रो के कोफैक्टर ले रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये आएगा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इक्वल टू a21 into a21 प्लस a22 into a22. अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो भी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट हमारी 1 ही आएगी. a11 मींस a21 दैट इज इक्वल टू 2. a21 कितना है 2 और a21 कितना है, दैट इज -4 प्लस a22 कितना हमारा 9 इंटू a22 कितना है हमारा, दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू -8 प्लस 9 इक्वल टू 1. Clear? So this is the value of the determinant with the help of cofactors. Now let us suppose हमने क्या लिया कि उसी रो के एलिमेंट लिए और उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लेते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आती है. बट सपोज हम फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लें a11 इंटू a21 प्लस a12 इंटू a22, यानी सपोज करो अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो के और उसके साथ में ले रहे हैं कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. तो a11 मींस 1 इंटू a21 मींस -4 प्लस a12 दैट इज 4 इंटू a22 दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0. इट मींस अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट लेते हैं और उसके साथ प्रोडक्ट करते हैं द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की और उनका सभी का सम करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट मिलती है हमें. लेकिन
अगर हम किसी रो के एलिमेंट लेते हैं और उससे दूसरी रो के कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम निकालते हैं तो वैल्यू हमेशा 0 आती है। सपोज करो एक एग्जांपल मान लीजिए और ले लें हम कि सपोज हमने अब सेकंड रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट लेते हैं सपोज, यानी A12 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A21। क्या करा है हमने जो लिया है सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिए हैं 1 2 और 2 2 और कोफैक्टर्स किसके ले रहे हैं 1 1 और 2 1 यानी फर्स्ट कॉलम के लिए। तो एलिमेंट इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 2 का मतलब कितना है 4 इंटू 1 1 कितना आया 9 प्लस A22 कितना है 9 और A21 कितना हमारा आया -4। तो दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर हम किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट लेकर उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालें और उन सभी का सम निकाल दें तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ जाती है। लेकिन अगर किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट ले रहे हैं और उसके साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं उससे अदर रो या अदर कॉलम के और उनका सम निकालते हैं तो आंसर विल बी 0। Okay, next topic is adjoint of a matrix. How can you find out what is the adjoint and how can you find out the adjoint of any matrix? Let us suppose adjoint of a matrix is given by the transpose of the cofactors of this function. Cofactors yani if A is given by this one then adjoint of A is given the transpose of this one where Aij capital Aij is the cofactor of the corresponding element Aij। याद रखिए कि जो ऑर्डर होगा वो स्क्वायर ऑर्डर होगा, हम रेक्टेंगुलर ऑर्डर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इफ A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m by n then adjoint of A is denoted by transpose of Aij of order m by n where Aij is the cofactors of the corresponding element Aij। तो it means Aij, it means that is equal to Aji of order m by n। Let us suppose if A is given by a small a11, a12, a21, a22 that is order of 2 by 2 then adjoint of A is equal to a11। a11 means cofactors of the a11, a12 cofactors of a12, a21 cofactors of a21, a22 cofactors of a22 और उसका ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम। तो इट मींस इफ A इक्वल टू दिस वन देन adjoint of A is given by the transpose of the matrix of the cofactors। Is it clear? Similarly for 3 by 3 if A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 ये आपको दिया हुआ है अगर A तो adjoint of A ये स्मॉल में है सब एलिमेंट, यहाँ कैपिटल में डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब दे आर कोफैक्टर्स। सो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बना है उसका ट्रांसपोज अगर हम निकाल दें तो A11 फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A। नाउ लेट अस सपोज इफ वी हैव टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स इज गिवन बाय this one A equal to that is the matrix। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है तो उसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसके माइनस और कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर मान लो हम इसका डिटर्मिनेंट अगर निकाल लेंगे, मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो A डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 4 2 9। इसके कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब इसका एडजॉइंट अगर हमें निकालना है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स then this is equal to A11 that is 9, A12 minus 2, A21 minus 4, A22 1 and the transpose of this matrix and this is equal to 9 minus 2 minus 4 and 1। So this is the adjoint of A of B। If we have to find out the adjoint of A, similarly find out the order for order 3 by 3। Now let us suppose if you are given the matrix A equal to 1 4 2 9
and we have to find out the adjoint of A by the shortcut method. हम इसका एक शॉर्टकट मेथड है, बड़ा मजेदार मेथड है स्टूडेंट्स। देखिए इसको हम शॉर्टकट मेथड से 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द कोफैक्टर्स। तो दैट इज इक्वल टू, क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको these two elements interchange, इसका हमें इंटरचेंज करना है और इन दोनों एलिमेंट का हम साइन चेंज करेंगे। क्लियर? तो 1 9 यानी यहां 9 आ जाएगा और यहां 1 आ जाएगा, यहां साइन चेंज करना है सिर्फ -4 -2। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ एडजॉइंट कितना था, 9 -4 -2 1। सो वी गेट द adjoint of A of order 2/2 by the shortcut method also. For 3/3 there is not a shortcut method to find the adjoint of A. First of all you have to find out the 3/3 मैट्रिक्स जो भी आपको दिया हुआ है उसके आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं and then write down the value of cofactors and then we will get the adjoint of A of order 3/3. So okay, स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पे, थ्योरम 1 for any square matrix A, that is A into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into I. Okay, let us suppose A is given by A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33 and the adjoint of this matrix is given by A11. A11 means cofactor of A11. So this is the ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में और थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड कॉलम में। अभी हमने डिस्कस किया था इस बारे में। तो अब थ्योरम है आपकी A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, हम ये लेकर चल रहे हैं। सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टॉपिक मैट्रिक्स अर्लियर, A रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अभी इससे पहले एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम एलिमेंट भी उसी रो के ले रहे हैं और कोफैक्टर्स भी उसी रो के एलिमेंट ले रहे हैं तो वैल्यू ऑफ दिस वन इज डिटर्मिनेंट। ये वैल्यू किसकी आई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई भाई, क्लियर। और ये फर्स्ट रो के एलिमेंट ले रहे हैं और सेकंड रो के कोफैक्टर ले रहे हैं, तो आंसर विल बी 0। सेम यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए हैं, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर लिए हैं, ये भी 0। यहाँ पे भी सेम है, सेकंड रो के ही एलिमेंट ले रहे हैं, सेकंड रो के कोफैक्टर ले रहे हैं, तो ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 0, सिमिलरली ये 0, ये 0, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको पता है कि ये जो आपका मैट्रिक्स है, आपने देखा था कि जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था कि अगर a इक्वल टू दिया है 2 3 1 4 तो हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे हम हर एलिमेंट को, तो कितना आता था, तो ये 4 6 2 8। तो ये आपका केवल मैट्रिक्स के लिए था, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं कितना, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ जाएगा यहाँ से थ्रू आउट, क्योंकि 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये आएगा आपका कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू I. So similarly we have to prove that adjoint of A into the matrix A equal to determinant of A into I. So finally we will get A into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into I. So this is the proof of this term. Now come to the next topic and the last topic for this one, that is inverse of matrix.
Now what is the inverse of matrix? You know it very well. You have already learnt about the topic matrix in earlier topic. So but before finding the inverse, you have to find out, you have to know the two things. If A is singular matrix, if determinant of A equal to 0, यानी अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा और हम उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? और अगर इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। और याद रखिए जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, यानी A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, A स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर। If determinant of A equal to 0, then in this condition inverse does not exist. And if A square matrix A is non-singular matrix, then determinant of A is not equal to 0. And in this situation, this condition, we have to find out the inverse of this one. Okay, inverse of the matrix. How can we find out the inverse? What is the formula to find the inverse? We have already proved this theorem. A into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into I. So in this condition we have to find only the inverse. It means A is non-singular, then inverse can be find. So it means if we divide by determinant of A where determinant A is not equal to 0, याद रखिए हम डिवाइड केवल उस नंबर से कर सकते हैं जिस नंबर से जो इक्वल टू 0 नहीं होगा। इट मीन्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू I आ जाएगा, डिटर्मिनेंट A कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू I। तो लेट अस सपोज अगर मैं इस वैल्यू को B मान लेता हूं, मान लीजिए, तो A B इक्वल टू B A इक्वल टू I। और प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो इट मींस दे आर इनवर्स टू ईच अदर। सो इन दिस कंडीशन A B इक्वल टू B A इक्वल टू I, इसका मतलब दिस एंड दिस आर इनवर्स टू ईच अदर। सो A इनवर्स इक्वल टू B होता है यहाँ पे, तो यहाँ से हम इस कंडीशन में निकाल सकते हैं कि A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इट मीन्स आपको ये चीज फाइंड आउट करना है अगर A इनवर्स हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। मान लीजिए हमारा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, सपोज करो एडजॉइंट A तो आपने निकाल लिया अभी इससे पहले टॉपिक में, सपोज 2 3 1 4 आ गया मान लीजिए, और हमारा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट A कोई भी अगर आपका मान लीजिए आपका मैट्रिक्स A कोई भी मान लीजिए A इक्वल टू दिया था सपोज 4 -3 -1 और 2 मान लीजिए ये है, हमने एडजॉइंट A निकाला था, इसको इंटरचेंज किया था और इसका साइन चेंज किया था। वो तो आप अगर 3/3 का है तो डायरेक्ट वे में माइनर्स को फैक्टर्स एडजॉइंट निकाल सकते हो। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A। इज इट क्लियर? इनको इंटरचेंज किया, इनका साइन चेंज किया, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ A। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, कितना आएगा 4 × 2 8 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 5। तो ये डिटर्मिनेंट A आ गया, ये एडजॉइंट A आ गया। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ A 2 3 1 4। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ A। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
जिसका जो टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अभी आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें केवल मैट्रिक्स की एप्लीकेशन थी, इसमें आप जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बोथ। आपने इक्वेशन सॉल्व की होगी दोस्तों, इक्वेशन को आपने डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया होगा। अब हम इस चैप्टर के अंदर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, हम 2 वेरिएबल की और 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।